Hello everyone, this is Gansham Bajaj. I hope you all are doing very well. Stay home, stay safe. Don't waste your time, watch your future destroyed. So do study. In this video, we are going to discuss images formed by a concave mirror. You can see this is the concave mirror in which reflecting surface is inverts. There is a principal axis, pole, focus and center of curvature. There are 6 cases in the 10th class of concave mirror. First is object, it will be placed at infinity. Second, object will be placed beyond the center. Third, next, center of curvature. Next, between center and focus. Next, focus. And last case, between pole and focus. In this diagram, you can understand what is the meaning of beyond C. Beyond C means center से दूर. Then you can see C, it is center, and between center and focus, this is the position you can see in the image between center and focus. In this image you can see the position between pole and focus. When we keep an object at infinity, then image will be formed at the focus, and when we keep object at the focus, then image will be formed at the infinity. जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पे, और जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे. When we put object beyond the center, then image will be formed between focus and center, and when we put object between focus and center, then image will be formed beyond the center. जब हम ऑब्जेक्ट को beyond the center रखेंगे तो इमेज बनेगी between focus और center के बीच में, और जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगी बियॉन्ड द सेंटर. जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखेंगे तो इमेज भी सेंटर पर बनेगी इक्वल साइज की. क्लियर? सो यू आर टू रिमेंबर दिस थिंग बाय द ट्रिक CCE. जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखेंगे तो इमेज बनेगी सेंटर पे इक्वल साइज की. दिस इज द टेबल मेड बाय मी. When object is placed at the infinity, then image is formed at the focus, and when object is placed at the focus, then image is formed at the infinity. Similarly, when object is placed beyond the center, then image is formed between focus and center, and when object is placed between focus and center, then image is formed beyond the center. And the last one is CCE. CCE means center पर रखेंगे, center पर बनेगी equal size की. Again you can see when object is placed infinity, then image is formed at the focus. जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पे, और साइज़ कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड. और जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर रखेंगे तो इमेज बनेगी बिटवीन फोकस और सेंटर, और साइज़ कैसी होगी? डिमिनिश्ड. अगेन आई वांट टू से, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पे, साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड. बियॉन्ड सेंटर रखेंगे तो इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर, इमेज होगी डिमिनिश्ड. और CC आप जानते हैं, CC मतलब ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखेंगे, सेंटर पर बनेगी इमेज और इक्वल साइज की बनेगी. अगेन आई वांट टू से दैट जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पे, साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर, देन इमेज इज फॉर्म एट दी बिटवीन दी फोकस एंड सेंटर, द इमेज विल बी डिमिनिश्ड. और जब सेंटर पर रखेंगे तो सेंटर पर बनेगी और इक्वल साइज की. अब नीचे आप देख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस और सेंटर रखेंगे तो इमेज बनेगी बियॉन्ड द सेंटर और साइज होगी एनलार्ज. अगेन यू लिसन. When object is placed at infinity, then image is formed at the focus. Size will be highly diminished. When object is placed beyond the center, then image is formed between focus and center. The size will be diminished. When object is placed at the center, then image is also formed at the center, and size of the image will be equal of the object. But when object is placed between focus and center, then image is formed beyond the center. Size will be enlarged. When object is placed at the focus, then image will be formed at the infinity, एंड साइज विल बी हाईली एनलार्ज्ड. इन सभी केसेस में इमेज जो बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी. चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखें, बियॉन्ड सेंटर रखें तब भी रियल इन्वर्टेड बनेगी, सेंटर पर रखेंगे तब भी रियल इन्वर्टेड बनेगी, बिटवीन फोकस और सेंटर रखेंगे तब भी इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड. और फोकस पर रखेंगे जब भी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी. मीन्स 6 में से 5 केस ऐसे होंगे जिसमें इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी. This is the 6th case, which is very important. When object is placed between pole and focus, then image will be formed behind the mirror, and the nature will be virtual and erect, and size will be enlarged. This is the very important case when object is placed between pole and focus.
जब ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर. नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज विल बी एनलार्ज. एनलार्ज मतलब होता है बड़ा. हाईली डिमिनिश मतलब होता है बहुत छोटा, पॉइंट साइज. डिमिनिश मतलब छोटा. इक्वल मीन्स इक्वल. एनलार्ज मीन्स बड़ा. और हाईली एनलार्ज मतलब बहुत बड़ा. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर रखेंगे, या सेंटर पे रखेंगे, या बिटवीन सेंटर फोकस पे रखेंगे, या फोकस पे रखेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे. तो एक ये ट्रिक है, इट्स अ सिंपल ट्रिक. मैं आपको ट्रिक समझाना चाहूँगा कि ऑब्जेक्ट को अगर आप पोल और फोकस के बीच में आप फर्स्ट पोजीशन मान लीजिए. अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो सेकंड पोजीशन. ऑब्जेक्ट को आप फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं तो थर्ड पोजीशन. ऑब्जेक्ट को आप फोर्थ पे रखते हैं तो सेंटर. ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड द सेंटर है तो उसको 5 मानेंगे, और इन्फिनिटी पे है तो 6 मानेंगे, और बिहाइंड द मिरर को आप 7 मानेंगे. अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपने 6 पे रखा. 6 कौन सी पोजीशन है देखेंगे. 6 आपने इन्फिनिटी, तो आपको 8 में से माइनस करना पड़ेगा. 8 माइनस 6 कितना होगा, 2. इसका मतलब इमेज बनेगी 2 पे, और 2 क्या है यहाँ पे, फोकस. तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे. जैसे मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर पे, और सेंटर की पोजीशन को आपने क्या बोला, 4. क्लियर. 8 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 आएगा. इसका मतलब इमेज भी कहाँ बनेगी, 4 पे बनेगी. क्लियर. अब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन फोकस और सेंटर के बीच में, दैट इज़ पोजीशन 3. तो 3 को आप 8 में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5. एंड 5 इज़ द बियॉन्ड दी सेंटर. क्लियर. 6 मतलब इन्फिनिटी, 5 मतलब बियॉन्ड द सेंटर, 4 मतलब सेंटर, 3 मतलब बिटवीन सेंटर एंड फोकस, 2 मतलब फोकस, एंड 1 मतलब पोल. जब आप पोल पे रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे जब आप ऑब्जेक्ट, तो इट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे रखा. 8 माइनस 1 कितना होता है, 7. और आप देखेंगे 7 कौन सी पोजीशन है, बिहाइंड द मिरर. तो जब आप 1 पे रखते हैं पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ पे बनती है, 7 पे. We are going to discuss first case when object is placed at infinity in front of concave mirror. हमें ये देखना है कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे कॉनकेव मिरर के सामने, तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, नेचर क्या होगा, और साइज क्या होगी. आप देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. क्लियर. किसी भी इमेज को बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर इमेज फॉर्मेशन 2 इंटरसेक्टिंग रिफ्लेक्टेड रेज आर रिक्वायर्ड. जब भी आपको इमेज ड्रॉ करनी है तो आपको 2 इंटरसेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग रेज आर रिक्वायर्ड, मीन्स चाहिए आपको 2 इंटरसेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग रेज. सो फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से सभी रेस पैरेलल आती हैं. लाइक यू कैन सी द फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, 2 rays are coming parallel to the principal axis incident on a concave mirror. And you know very well, जब रेस पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, then after reflection they pass through the focus. तो आप देख सकते हैं जो पैरेलल रेस आ रही थी, अब वो कहाँ से जा रही हैं, फोकस पे जा रही हैं. अब जहाँ पे दोनों रेस मिलेगी वहाँ पे इमेज बनेगी. तो आप देख सकते हैं फोकस पे दोनों रेस मिल रही हैं, तो फोकस पे इमेज बनेगी. Object is placed at the infinity. The rays are coming parallel to the principal axis. Clear. After reflection, parallel rays meet at the focus. So image is formed at the focus. Image actually में meet कर रही हैं. Rays जो है ना वो actually में meet कर रही हैं. तो जब rays actually में meet करती हैं उससे जो image बनती है वो real होती है, और real image हमेशा inverted होती है. तो this image is real and inverted and size is highly diminished. Highly diminished मतलब point size. तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट द इन्फिनिटी. इमेज की पोजीशन क्या है, एट द फोकस. साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड. और नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड. रियल इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि रेस जो है वो एक्चुअली में मीट कर रही हैं. हाईली डिमिनिश्ड मतलब क्या, पॉइंट साइज. ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे. इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस पे. अगेन यू कैन सी सेम केस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी. द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. 2 रेज लेनी है आपको which are parallel to the principal axis. After reflection they intersect at the focus and the image is formed at the focus which is highly diminished. Nature is real and inverted. Now we'll discuss another case. Object is placed beyond the center in front of concave mirror. अब हम object को कहाँ रखेंगे, center से दूर. So you can see in the image the object is placed beyond the center. This is the concave mirror. Okay, you are to take 2 rays. One you will take parallel ray. After reflection it will pass through the focus. Another you can take the ray which passes to the center of curvature.
पहली रे आपको पैरेलल लेनी है, पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी रे आपको लेनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप देख सकते हैं इसमें पहली रे कौन सी है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर, और पहली रे कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस। तो आप देख सकते हैं जो पैरेलल रे वो तो फोकस से जा रही है। सेकंड रे यू आर टू टेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आप जानते हैं जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वापस उसी पाथ में चली जाती है। अब यहाँ पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्टिंग रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पे और प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज बनेगी। क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट पे आपको इमेज बनानी है जहाँ पे दोनों रेस मिल रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज ए बी एंड इमेज इज ए डैश बी डैश। आपको प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट पे इमेज ड्रॉ करनी है। क्लियर, नाउ यू कैन सी ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर। ऑब्जेक्ट जो है सेंटर से दूर है। पहली रे आपको पैरेलल लेनी है, पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से। सेकंड रे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेनी है जो उसी पाथ को ट्रेवल करेगी। दोनों रेस जहाँ पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस से वहाँ पे आपको इमेज बनानी है। ऑब्जेक्ट इज ए बी, इमेज इज ए डैश बी डैश। अगेन यू कैन सी द रेस आर एक्चुअली मीटिंग। जब रेस एक्चुअली मीट करती हैं तो इमेज का नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज आप देख सकते हैं, साइज कैसी है, छोटी है। ऑब्जेक्ट ए बी देख सकते हैं थोड़ा बड़ा है, ए डैश बी डैश इमेज जो है वो छोटी है। क्लियर, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड। सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन वाज द बियॉन्ड द सेंटर। ऑब्जेक्ट जो था सेंटर से दूर था। इमेज कहाँ बनी थी, आप देख सकते हैं इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इज बियॉन्ड द सेंटर एंड इमेज पोजीशन इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज इज डिमिनिश्ड। Clear, again I want to say the object is placed beyond the center. You are to take two rays, one is parallel ray जो जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। सेकेंड रे यू आर टू टेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आएगी, सेम पाथ को ट्रेवल करेगी। दोनों रेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज बन जाएगी। सो नेचर एंड रियल इन्वर्टेड, वाई, बिकॉज रेस आर एक्चुअली मीटिंग। क्लियर, इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि उल्टी, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। क्लियर, एंड साइज इज डिमिनिश्ड। So object position is beyond the center, image position between center and focus, nature real inverted, size diminished. Clear? Now object will be placed at the center in front of concave mirror. यहाँ पे हमारी CCE वाली ट्रिक काम आएगी। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे रखेंगे, इमेज सेंटर पे बनेगा और साइज होगी इक्वल। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट रियल एंड इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ पे रखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अगेन यू आर टू टेक टू रेस, एक आप पैरेलल रे लेंगे जो फोकस से जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस बार रे नहीं लेनी है, आपको इस बार रे लेनी है फोकस से। तो पहली रे कैसी लोगे आप, पैरेलल रे जो फोकस से जाएगी। दूसरी रे आपको लेनी है फोकस से जो पैरेलल हो जाएगी। लाइक यू कैन सी फर्स्ट रे इज पैरेलल, सो फर्स्ट रे आप पैरेलल लेंगे। पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से। सेकंड रे आपको जो लेनी है वो फोकस से लेंगे। सेकंड रे लेंगे आप फोकस से, जो रे फोकस से आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। लाइक यू कैन सी द रे इज कमिंग टुवर्ड्स द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।